ही थॉट कि अगर हम लोग यहाँ पर मैं इसके साथ अगर फ्रेंडशिप बना के रखूंगा, जो हमारा जो एम्बेसडर है, तो ये मुझे हेल्प करेगा इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आई तो। ठीक है, जैसे अगर कोई बेड का मैम किसी और क्लास का बच्चा ज्वाइन किया है मैम। विच स्टूडेंट बच्चे? बीबीए मैम। आई बिलीव ही लेफ्ट। बीबीए की क्लास थी पहले, तो ही माइट हैव ज्वाइन बाय मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो नरेटर है, ही इज थिंकिंग कि वंस ही गॉट द सैलरी, ठीक है, जब उसके जॉब मिल जाएगी, इम्पोर्टेंट जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, तो फर्स्ट ईयर का जो उसका सैलरी होगा उससे वो सभी लोगों को वापस कर देगा, जो भी शॉप ओनर है जिन्होंने कुछ सामान उसे दिया है, या फिर जो होटल ने उसे रहने दिया है, खाना दिया है जहाँ पर रेस्टोरेंट में, उन सभी को वो पैसे लौटा देगा। कैसे लौटा देगा? अकॉर्डिंग बाय गेटिंग अ जॉब फ्रॉम द ओल्ड जेंटलमैन। ठीक है, जो जिन्होंने बेट लगाई थी, अगर वो उसे जिता देगा तो वो शायद उसे पैसे दे दे, पैसे, अच्छे पैसे वाला जॉब दे देगा। तो ही वाज डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ द जेंटलमैन। ठीक है, यस। नेक्स्ट, एनीवन हु वुड लाइक टू रीड फ्रॉम पार्ट 6? Ruchi, your audio is not clear. You might want to get it again reconnected. ऑडियो एक बार रिकनेक्ट करके देखो ऑडियो, वो आवाज कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। Okay, till the time, anyone else who would like to read? Okay, Ankit, roll number 4, 445, start reading from here. Yes, Ankit, are you able to hear my voice? Okay, till the time he is responding, can anyone else start reading here? Otherwise, Ankit, तुम ही read कर लो. There were 14 people at the dinner party: the Duke, the Duchess of Shoreditch, and their daughter, Lady Anne Grace Eleanor de Bohun, the Earl and Countess of Newgate, Viscount Cheapside, Lord and Lady Bletherskite, the ambassador and his wife and daughter, and some other people. There was also a beautiful 22-year-old English girl named Portia Langham. I fell in love with her in 2 minutes, and she with me. After a while, the house servant presented another guest, Mr. Leod Hastings. When Mr. Hastings saw me, he said, "I think I know you." "Yes, you probably do. Are you the Yes, I am the strange millionaire and with the £1,000,000 note in this pocket." Well, this is a surprise. I never thought you were the same Henry Adams from San Francisco. 6 months ago, you were working in the office of Black Hopkins in San Francisco. I remember clearly. You had a very small salary, and at night you helped me arrange the papers for the Gold and Curry Mining Company. Now you are a millionaire, a celebrity here in London. I can't believe it. How exciting. I can believe it either. Leod. Just 3 months ago, we went to the Minor restaurant. Minor restaurant. No, it was the What Cheer restaurant. Right, it was the What Cheer. We went there at 2 o'clock in the morning. We had a steak and coffee. The night we worked for 6 long hours on the God and Curry Mining Company papers. Do you remember, Henry?
I asked you to come to London with me. I wanted you to help me sell the gold and Curry Gold Mine shares, but you refused. Of course, I remember. I didn't want to leave my job in San Francisco, and I still think it's difficult to sell shares of a California gold mine here in London. You were right, Henry. You were so right. It is impossible to sell these shares here in London. My plan failed, and I spent all money. I don't want to talk about it, but you must talk about it. When we leave the dinner party, you must tell me what happened. Oh, can I? I really need to talk to a friend, Leod said, with water in his eyes. Yes, I want to hear the whole story, every word of it. Thank you, Henry. You are a true friend. At this point, it was a time for dinner. Thanks to the English system of precedence, there was no dinner. The Duke of Shoreditch wanted to sit at the head of the table. The American ambassador also wanted to sit at the head of the table. It was impossible for them to decide, so we had no dinner. The English know about the system of precedence. They have dinner before going out for everyone to play a game called Caribage. The English never play a game for fun. They play to win or lose something. Miss Langam and I played the game, but with little interest. I looked at her beautiful face and said, Miss Langam, I love you. Miss Langam, I love you. Mr. Adams, she said softly and smiled, I love you too. This was a wonderful evening. Miss Langam and I were very happy. We smiled, laughed, and talked. I was honest with her. I told her that poor and I was poor and I didn't have a cent in the world. I explained that the £1,000,000 note was not mine. She was very curious to know more. I told her the whole story for the start. She laughed and laughed. She thought the story was very funny. I didn't understand why it was funny. I also explained that I needed an important job with a big salary to pay all my debts. Portia, dear, can you come with me on the day I must meet those two gentlemen? Well, yes, if I can help you, she replied. Of course, you can help me. You are so lovely that when the two gentlemen see you, I can ask for any job and any salary. With you there, my sweet Portia, the two gentlemen won't refuse me anything. Okay, wait till here and then we can start after I explain. तो यहाँ पर पोर्शन हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक. ही बिकेम अ वेरी फेमस पर्सनालिटी. ठीक है, हमारा जो नरेटर है उसने उस नोट की वजह से ना तो उसने कहीं पर चेंज किया और ना ही उसने वो नोट जो है ना बैंक को वापस किया, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग अरेस्टेड. तो यहाँ पर सिर्फ नोट दिखाकर लोगों पब्लिक शॉप्स जो हैं वहां पर उसने वो नोट दिखाकर बहुत सारे जो लोग हैं उनसे कुछ सामान ले लिया, क्रेडिट ले लिया. बट नाउ ही हैज बिकेम अ सेलिब्रिटी. ठीक है, बिकॉज ही वाज जस्ट होल्डिंग अ नोट, अ वेरी लार्ज नोट, ही हैज बिकम अ सेलिब्रिटी. तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जिनके साथ उन्हें एक डिनर पार्टी में बुलाया गया. तो ही वेंट टू द डिनर पार्टी. तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे. ठीक है, ड्यूक था, जो वहां पर अर्ल थे, काउंटर्स थे, वाइकाउंट थे, बहुत सारे इम्पोर्टेंट एम्बेसडर था, उनकी फैमिली थी, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग जो हैं इंग्लैंड के वो वहां पर आए हुए थे. तो ही द नरेटर डिड व्हाट, द नरेटर वाज आल्सो एट द पार्टी, एट द डिनर पार्टी. और वहां पर उसे एक इंग्लिश गर्ल मिली, पोर्टिया लैंघम, एंड ही फेल इन लव विद दैट गर्ल. ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि देयर वाज अ पर्सन, मिस्टर लॉयड हेस्टिंग. तो मिस्टर हेस्टिंग जो है वो पहले यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में जहाँ पर वो काम करता था, जहाँ पर उसकी अच्छी खासी जॉब थी, जहाँ पर वो सेटिस्फाइड था, तो वहां पर वो काम करता था जिस लोगों के लिए, वो लोग उन लोगों में से मिस्टर लॉयड एक पर्सन थे, मिस्टर हेस्टिंग एक ऐसे पर्सन थे जिनके साथ वो डायरेक्टली काम किया करता था. तो दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड मिस्टर हेस्टिंग जो है उन्होंने ये बताया कि आफ्टर ही हैज शेयर्ड दिस इंफॉर्मेशन विद आवर नरेटर, हमारे नरेटर के साथ उन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि वो एक माइनिंग कंपनी का जो माइनिंग गोल्ड माइन है कैलिफोर्निया का, उसके शेयर्स यहाँ पर लंदन में बेचना चाहता था.
तो हमारा जो नरेटर है उसने पहले ही कह दिया था कि ये जो आपका आइडिया है दैट इज नॉट वेरी गुड, यहाँ पर लोग जो है वो गोल्ड माइन नहीं खरीदेंगे, ठीक है। There were many reasons behind that because at that point gold rush नाम का एक situation था, ठीक है, जो अमेरिकन एरिया था वहां पर एक्चुअल गोल्ड किसी को मिल गया था। so they thought that if they start mining, वहां पर अगर माइनिंग करने जाएंगे तो उन्हें शायद गोल्ड मिल जाए, और कुछ लोगों को मिला भी था। बट बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल फ्लेड फ्रॉम देयर होम, वो अपना घर बार छोड़ के, बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पर माइनिंग में चले गए ताकि उन्हें कुछ भी मिल जाए तो दे कैन बिकम रिच और दे कैन हैव अ स्टेबल लाइफ स्टाइल, और दे कैन बिकम मच मोर स्टेबल लाइफ स्टाइल फॉर देयर चिल्ड्रन एंड फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो उन ये सारी वजह से गोल्ड रश वाज अ थिंग इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ, यूएसए या अमेरिका में गोल्ड रश जो था वो बहुत ज्यादा अमेरिका में पाया जाता था। बट द पीपल इन लंदन they were more they had more important things to worry about, ठीक है। इन लंदन में आपके पास कितना गोल्ड है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। लंदन इज अ प्लेस और इंग्लैंड इज अ प्लेस वेयर योर पोजीशन मैटर, ठीक है। वहां पर पोजीशन ज्यादा मैटर करती है। लाइक आपने यहाँ पर देखा जो इतने सारे पोस्ट यहाँ पे बताए गए हैं, ड्यूक है, अर्ल है, काउंटेस है, वाइकाउंटेस है, एम्बेसडर है, तो ये पोजीशंस मैटर करता है। लाइक इफ यू बिलोंग टू अ प्रोमिनेंट फैमिली ओनली देन यू आर इम्पोर्टेंट, इफ नॉट तो आपको बहुत ज्यादा जगह इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा नरेटर है उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट लोगों से बात करना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, बिकॉज दीज पीपल आर मोर इनटू देयर जनरेशन, ठीक है। वो अपने मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, इससे ज्यादा कि कोई बहुत ज्यादा कामयाब है या बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहा है, उसके लिए उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी ये चीज, ठीक है। तो फॉर हिम टू बी एबल टू लाइक उन लोगों के साथ घुलना मिलना उसका हो रहा था नरेटर का, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, और इवन फॉर द अदर पीपल ऑल्सो। जब इसकी मुलाकात मिस्टर हेस्टिंग से हुई तो उसने पहले ही ये कहा था कि लंदन में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे गोल्ड माइन में, जो कि एक्चुअल में सही बात निकली। तो यहाँ पर मिस्टर हेस्टिंग जो थे उन्होंने अपना सारा पैसा इस प्लान में लगा दिया था, और अब जो है वो उनके पास बहुत सारी जो प्लान है वो फेल हो गया है, और ठीक है, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो वो वहां पर डिनर पार्टी में बहुत सारे लोगों के सामने बात नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि दैट इज ऑल राइट, आफ्टर दिस डिनर पार्टी वी कैन मीट एंड टॉक। तो मिस्टर हेस्टिंग जो थे उन्होंने उनको लगा कि उन्हें एक दोस्त चाहिए, बिकॉज ही हैज लॉस्ट अ लॉट, ठीक है। उसका प्लान पूरा फेल हो गया, हो सकता है वो बहुत डायर सिचुएशन में हो, तो उसे एक फ्रेंड की जरूरत थी। तो इसीलिए जो हमारा फ्रेंड, जो हमारा नरेटर है, उसने मिस्टर हेस्टिंग को कह दिया कि यू कैन टॉक टू मी। एंड यहाँ पर बताया गया है मिस्टर हेस्टिंग ने कई बार हेनरी नाम लिया है यहाँ पर, तो हमारा नरेटर का नाम यहाँ बताया गया है, दैट हिज नेम इज हेनरी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो हेनरी है, हेनरी ने मिस्टर हेस्टिंग को कहा कि आप मुझसे जब भी चाहें एज अ फ्रेंड जो भी चाहें आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट व्हेन जो हेनरी है, जब वो हेनरी एडम्स जब मिसेस लेंगम के साथ बात कर रहा था, पूरा इवनिंग उसने उसके साथ ही बिताया, और उसने सारी सच्चाई, मतलब बिकॉज ही लव्ड हर, तो उसे लगा कि जब अगर मुझे कोई रिलेशनशिप रखना है इस लड़की के साथ तो मुझे सब सच बता देना चाहिए। सो ही ऑनेस्टली टोल्ड एवरीथिंग टू हर, ठीक है। तो मिस लंघम को यहाँ पर सब कुछ उसने बताया हेनरी ने, कि वो बहुत ही गरीब है, उसके पास उसके एक नोट है जो कि उसका भी नहीं है। तो मिस लंघम को ये बहुत फनी लगा, ठीक है। और जो हेनरी है उसने पूछा कि जब ये बेड जो है ओवर हो जाएगी 1 मंथ में, तब क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं चलूंगी। तो ही थॉट व्हाट, हेनरी थॉट व्हाट, कि अगर कोई अच्छी लड़की मेरे साथ रहेगी तो उन्हें लगेगा कि उनकी लाइफ जो है, मेरी लाइफ यहाँ पर सेटल हो चुकी है, तो वो जो जेंटलमैन है वो मुझे रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, मैं जो भी जॉब मांगू, मैं जो भी सैलरी मांगू वो मुझे दे देंगे। ओके,
So this is the part where we have discussed कि क्या हो रहा है यहाँ पर अभी तक. There is the 1 month has not completed. ठीक है. अब इसके क्या आगे क्या हुआ? Let's see. Yes, anyone else who would like to read? अगर कोई नहीं read करेगा तो अंकित you can go ahead with this. At the end of the dinner party, I returned to the hotel with Hastings. He talked about his problems, but I didn't listen to him. I was thinking about Portia the whole time. When we arrived at the hotel, Hastings said, "Let me just stand here and look at this marvelous hotel. It's a place, but expensive furniture. You have everything you want. You are rich, Henry, and I am poor." His words scared me. I too was poor. I, I didn't have a cent in the world, and I had debts to pay. And I needed to win the gentleman's bed. Depth. This was my. This was my. कोई बीच में बोल रहा है क्या? Last hope. नहीं बच्चा. This, Go ahead with it. this was my last hope. Hastings didn't know the truth. Henry, just a tiny part of your income can save me. I am desperate. Hastings cried. My dear Hastings, sit down here and drink this hot whiskey. Now tell me your whole story, every word of it. Do you want to hear my story again? But you never told me your story. Of course, I told you my story. As we walked to the hotel, don't you remember? I didn't hear one word of it. Henry, are you ill? Is something wrong with you? What did you do that day? This is why I didn't hear your story before. Yeah, continue please. Hastings got up from his chair. Got up from his chair, shook my hand, and laughed. "I am very happy for you, Henry. Very happy," he said, smiling. "I will tell you the whole story again." So he sat down and patiently started to tell me his story. To make a long story short, the owners of the Gold and Curry gold mine sent Lloyd to England to sell the shares of the mine for $1 million. Any money he received over $1 million was his to keep. Hastings' dream was to sell the shares for more than $1 million and become rich. He had only 1 month to sell the shares. He had done everything to sell them, but nobody wanted to buy them. Then he jumped up and cried, "Henry, you can help me. Will you do it? Tell me how. Give me $1 million and I will sell you all the shares. You will be the new owner of the gold mine. Don't, don't refuse." I did not know what to say. I wanted to tell Hastings the truth, but then an intelligent idea came to me. I thought about it for a moment and then calmly said, "I will save you, Lord." "Then I am already saved. How can I thank you?" "Let me finish, Lord. I will save you, but not in the way. I have a better way. I know everything about that mine. I know its great value. You will sell the shares by using my name. You can send anyone to me. Since people in London know me, I will guarantee the gold mine. In a week or two, you will sell the shares for $3 million by using my name, and we will share the money you earn, half to you and half to me." Lloyd was very happy and excited. He danced around the room and laughed. "I can use your name. Think of it. The rich Londoners will run to buy their shares. I'm saved, and I will never forget you, Henry." Okay, let me explain first. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो मिस्टर हेस्टिंग थे उसके साथ जब हेनरी वापस आ रहा था होटल में, तो मिस्टर हेस्टिंग ने रास्ते में ही बहुत कुछ उसे बताया, पूरा स्टोरी बताया कि हाउ ही हैज
how his big plan to sell all the things, all the gold mines to the others, to the lenders, have failed. ये पूरा जो प्लान उसका फेल हुआ लंडनर्स को उसका शेयर बेचने का, गोल्ड माइन का, ये उसने बता दिया। बट हेनरी का ध्यान नहीं था, हेनरी का ध्यान पोर्शिया पे था, ठीक है। उसके बाद जब वो लोग होटल पे पहुंचे तो हेस्टिंग बस कुछ देर के लिए उसने कहा कि मुझे पहले यहाँ पर फर्नीचर जो है, मुझे यहाँ पर एक्सपेंसिव फर्नीचर, मुझे यहाँ पर सब कुछ जो है देखने दो एक बार। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ हेनरी, तुम रिच हो गए हो, विच स्केयर्ड द नरेटर। हेनरी को ये बात जो है बहुत डरावनी लगी, वो डर गया कि वो भी बहुत गरीब था और उसके पास कुछ भी नहीं था, ये सारी चीजें उसने डेप्ट में थी। और उसे उस लोग जो ब्रदर्स थे, ब्रदर ए एंड बी में से किसी एक को जिताना था, तभी जाकर उसे वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो सारी चीजें उसने खरीदी हैं, उसका वो डेप्ट पे कर सकता है और वो कुछ भी और कर सकता है। तो हेनरी जब मिस्टर हेस्टिंग ने जब ये कहा कि तुम मुझे थोड़े से पार्ट अगर अपना इनकम दे दो तो मैं बच जाऊंगा, मेरी लाइफ सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा हेनरी है, क्योंकि उसने पूरा स्टोरी नहीं सुना, तो उसने ये पूछा कि पहले तुम यहाँ पर बैठो मेरे साथ और मुझे पूरा सा स्टोरी बताओ, ठीक है। अब हेस्टिंग ने ऑलरेडी बता चुका था, उसने सुना नहीं था हेनरी ने, तो उसे पूरा स्टोरी दोबारा बताना पड़ा, ठीक है, बिकॉज ही वॉज लॉस्ट इन द थॉट्स फॉर अबाउट पोर्शिया। तो यहाँ पर उसे दोबारा उसने स्टोरी बताया। स्टोरी बताने में क्या, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके हेनरी ने यहाँ नरेटर ने क्या लिखा है कि जो ओनर थे, माइंड गोल्ड के जो ओनर थे, उसने मिस्टर हेस्टिंग को भेजा था लंदन में शेयर $1 मिलियन पे बेचने के लिए, और $1 मिलियन पे जो वो बेचेगा उसका कमीशन उसे मिलेगा, और उस कमीशन से ही थॉट, मिस्टर हेस्टिंग थॉट दैट ही विल बिकम रिच। बट यहाँ पर कोई भी वो सेल नहीं कर पाया कोई शेयर, ठीक है। तो हेनरी से वो मदद मांग रहा था। उसने कहा कि अगर हेनरी जो है वो $1 मिलियन उसे दे दे, ठीक है, या $1 मिलियन उसे दे दे, वो शेयर सारे उसे बेच देगा, ठीक है। और जो भी शेयर्स है, क्योंकि उसने सारे वो खरीद लिए, तो वो ओनर बन जाएगा गोल्ड माइन का, और जो मिस्टर हेस्टिंग है उनकी लाइफ बच जाएगी। बट यहाँ पर हेस्टिंग ऑब्वियसली नहीं दे सकता था वो पैसे, क्योंकि जो $10 मिलियन थे या 10 मिलियन पाउंड जो थे, वो उसके खुद के नहीं थे, वो किसी और को ये पैसे नहीं दे सकता था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने क्या कहा कि लॉयड तुम एक काम करो, मेरे नाम लेकर तुम यहाँ पर लंडनर्स में जितने भी रईस लोग हैं, मेरा नाम लो और उनके सामने जाकर शेयर उनके पास जाकर बेचो, और कहो कि मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ गोल्ड माइन की। अब बिकॉज ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी देयर, लंदन में वो बहुत एक फेमस पर्सनालिटी बन चुका था। तो जिस तरह आप समझ लीजिए कि जैसे हम एडवर्टाइजर में देखते हैं, तो अगर आपका कोई फेवरेट हीरो होता है, एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं, वो अगर किसी ब्रांड का वैल्यू बढ़ाने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर के लिए कोई ऐड करते हैं, तो आपके मन में कभी ना कभी लगता है कि अरे मेरा फेवरेट एक्टर इसका ऐड कर रहा है, मुझे ये लेना चाहिए, राइट। तो दिस इज हाउ दे प्लान्ड इट, ठीक है। यही दिमाग में हेनरी के भी दिमाग में ये आया कि जब मुझे लोग इतना जान पहचान कर रहे हैं, मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दैट आई वाज हैविंग डिनर विद सो इम्पोर्टेंट पीपल, तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर मेरा नाम लेके ये यहाँ पर शेयर को बेचेगा। तो लॉयड ऑल्सो थॉट कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, और वो जो प्रॉफिट होगा उसमें वो आधा आधा शेयर कर लेंगे, हेनरी को भी आधा मिल जाएगा एंड लॉयड को भी आधा मिल जाएगा। So they were very happy, and Lloyd thought that his life was saved. Okay, so this was the part here. अगर किसी को कोई doubt हो रहा है while I'm explaining or after I have already explained, so you can ask me. And one more thing, I hope I have sent this document in your group. Have I sent this document in your group? If not, let me remind you, ठीक है। कोई एक बच्चा मुझे एक बार रिमाइंडर भेज देना व्हाट्सएप पे कि मैम आपको ये डॉक्यूमेंट हमारे ग्रुप में भेजना है, बीबीएम में भेजना है, सेकेंड ईयर में। आई विल सेंड इट। ओके यस मैम। यस, ओके। एनीवन एल्स वुड लाइक टू रीड? मैम मेरी आवाज अब आ रही है क्या? यस, योर वॉइस इज क्लियर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। यस मैम।
The next day, all of London talked about the shares of the California Gold time. I stayed in my hotel and said to everyone who came to me, "Yes, I know Mr. Hastings. He is very honest man. And I know the gold mine because I lived in the California gold country. It is a mine of great value. People were now interested in buying the shares." I spent every evening with Portia at the American and Register House. I did not tell her about the shares and the night. It was a surprise. We talked about our love and our futures together. Finally, the end of the month arrived. Lots of rich Londoners bought the shares of the mine. I had $1 million of my own in the London and Country Bank, and Lord did too. It was to meet with the two old gentlemen. I dressed in my best clothes and I went to get Portia. Before going to Portland Place, Portia and I talked about the job and the salary. "Portia, you are so beautiful. When the two gentlemen meet you, they will give me any job and any salary I ask for. Henry, please remember that if we ask for too much, we will get nothing. Then what will happen to us? Don't be afraid, Portia." When we arrived, the same servant opened the door. There were the two old gentlemen having tea. They were surprised to see Portia. I introduced her to them. Then I said, "Gentlemen, I have bread. I am ready to report to you. We are pleased to her." They said, "One gentleman, no one can decide. The bet that my brother Abel and I made. If you want for me, you can have any job in a power. Do you have the £1 million note? Here it is, sir." And I gave to him. I want he suited. Now what do you say, Abel? I say he's surprised. And how lost £20,000? I cannot believe it. I have more to tell you. I said, but it's a long story. I will tell you another time. For now, look at this. What a certificate of, of deposit from 200 lakh. Is it ours? It's mine. I earned it by using the back note you lent me for a month. This is astounding. This is astounding. I cannot believe it. Portia looked at me with surprise and said, "Henry, is that really your money? You did not tell me truth." "No, I did not, but I know you will forgive me." "Don't. Don't be so. You told me a lie, Henry. Dearest Portia, it was only for fun. Come, let's go now." "But wait. My gentleman said, I want to give you the job and the salary you choose." Thank you with all my heart. But I do not want the job." "Henry, you do not think the good gentleman is the right way. Can I do it for you?" Portia said. "Of course you can, my dear." Portia walked to my gentleman, sat on his lap, and kissed him on the mouth. Then the two gentlemen sorted and laughed. I was amazed. What was happening? Papa said, "Portia, Henry does not want your job. I feel very hurt." "Darling, is that your father?" I asked. "Yes, he is my stepfather, a dear man. Now do you understand why I laughed when you told me your story?" "My dearest sir, I said I want to take back what I said. There is a job that I want. Tell me, I want the job of son-in-law." Well, but you were never a son-in-law before. Do you now how to do this job? Try me, please. Try me for this 30 or 14 years. And if, oh, all right, take her. We're Posey and I happy. There are not enough words in the dictionary to describe our happiness. When the learners hear the whole story of my adventures with the banknote, they talked of nothing else. Posia's father took the banknote back to the Bank of England and cashed it. Then he gave the cancelled banknote as a wedding present. We put in a picture frame and hung it on the wall in our new home. And so I always say, yes, it's £1 million banknote, but it only about one thing in its life, the most valuable things in the world. Portia. Okay, so here in the last part, what happened? I believe this is the last part where our story ends. तो यहाँ पर पार्ट 8 में क्या होता है कि बैक टू पोर्टलैंड प्लेस, मतलब यहाँ पर जो पूरे लंदन में मिस्टर हेस्टिंग जो क्या करते हैं, मिस्टर हेस्टिंग हेनरी का नाम लेकर
बहुत सारे लंडनर्स को बोल देते हैं, जितने भी रईस लोग होते हैं, वहां पर रिच लोग होते हैं, उन्हें बोल देते हैं कि मिस्टर एडम के पास आप जा सकते हैं एंड यू कैन आस्क अबाउट मी एंड द गोल्ड माइन। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं एडम से मिलने के लिए, मिस्टर एडम से मिलने के लिए, हेनरी उन सबको बताता है कि हाँ, मिस्टर हेस्टिंग के बारे में मैं जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, और गोल्ड माइन जो है वो बहुत ही अच्छा ये है, कंट्री बहुत अच्छा है, वहां पर गोल्ड माइंस एक्चुअल में पाए जाते हैं, इट इज अ रियलिटी एंड आई हैव लिव्ड देयर, इसीलिए मुझे वहां पर पता है कि माइंड का जो वैल्यू है वो बहुत अच्छा है। अब उस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, जब तक आपका मंथ एंड होता है तब तक बहुत सारे शेयर जो है मिस्टर हेस्टिंग बहुत सारे लंडनर्स को बेच चुके होते हैं, एंड अब उसके पास, लॉयड के पास और हेनरी के पास, दोनों के पास $1 मिलियन अपना खुद का होता है, उनके लंदन एंड कंट्री बैंक में अपना एक अकाउंट होता है उनका, और जिसमें वो लोग अपने अकाउंट में जो भी उन्होंने अपना जो भी शेयर्स उन्होंने बेचे कैलिफोर्निया गोल्ड कंट्री के, वो सारे शेयर्स के ऊपर जितना भी उनको प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट से उन दोनों ने एक मंथ के अंदर $1 मिलियन कमा लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जब टाइम आता है दोनों जेंटलमैन को मिलने के लिए, जिन ब्रदर्स ने बेट लगाई थी, तो जो हेनरी होता है वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाता है पोर्शिया को लेने के लिए। तो पोर्शिया और वो बात कर रहे होते हैं जॉब के बारे में, जो जेंटलमैन ने उन्हें उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे दे देगा, वो जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि उसे लगता है कि जो हेनरी है उसे लगता है कि अगर मैं पोर्शिया को लेके जाऊंगा तो वहां पर जो दो जेंटलमैन है वो मना नहीं करेंगे, मैं कोई भी जॉब, कोई भी सैलरी अगर उनसे मांगता हूँ तो यहाँ पर पोर्शिया जो कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं मांगना चाहिए कि तुम्हें कुछ भी ना मिले। अंडरस्टूड? दैट मीन्स शी वाज गिविंग अ लेसन टू हिम कि आपको बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो सैलरी, जो भी तुम्हारे पास वेजेस रहेगा, जो भी अच्छा एक सैलरी, जो भी अच्छा जॉब मिलेगा, वो तुम्हें ले लेना चाहिए। तो शी वॉज टेस्टिंग हिम अबाउट हिज नेचर कि कितना वो पैसा मांगेगा, कौन सा जॉब मांगेगा, कितनी सैलरी मांगेगा वो उसके फैमिली से। ठीक है, तो यहाँ पर एडम जो है, मिस्टर एडम जो है, हेनरी वहां पर रीअश्योर करता है पोर्शिया को कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, आई विल टॉक टू देम। तो यहाँ पर जेंटलमैन के घर जब वो जाता है तो वो सेम सर्वेंट जिसने उससे कहा था कि आप 1 मंथ के बाद आइए, वो सेम सर्वेंट उसे घर के अंदर लेके जाता है, और वहां पर दोनों ब्रदर्स जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो उन्हें £1 मिलियन का जो नोट होता है वो देता है कि सर हेयर इट इज योर नोट। ठीक है, और जो ब्रदर रहता है एबल, और एक ब्रदर रहता है, एक ब्रदर का नाम एबल रहता है, और उसका दूसरा जो ब्रदर होता है, ब्रदर बी जो है, वो जीत जाता है। सो ही थॉट कि यहाँ पर उसके पास ये सर्टिफिकेशन रहता है उनका, जो 20 मिलियन सॉरी 20,000 का जो उनका बेट लगता है, ठीक है, वो डिपॉजिट, वो उनका बेट वो जीत जाता है, एबल का ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो बेट जीत जाते हैं, उसके बाद जो हेनरी है वो उन्हें एक सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट दिखाता है £2 मिलियन का। दैट मीन्स अब उसके पास खुद का अपना अकाउंट है जिसमें £2 मिलियन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हेनरी, पोर्शिया पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने झूठ बोला, तो ही थॉट कि वो उसे माफ कर देगा, बट वो पोर्शिया उसे परेशान करने के लिए क्या करती है, वो जाकर जिस पर्सन ने बेट जीता है उसकी वजह से, हेनरी की वजह से जिस पर्सन ने बेट जीता है, वो जाके उसकी गोद में बैठ जाती है, और वो कहती है पापा, हेनरी को आपकी जॉब नहीं चाहिए। दैट मीन्स द ओल्ड जेंटलमैन जिसकी तरफ से हेनरी ने बेट जीता, वो पोर्शिया के फादर थे, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हंस रही थी, बिकॉज शी न्यू विच पर्सन ही वॉज टॉकिंग अबाउट। हेनरी किसके बारे में बात कर रहा है, उन दोनों को हेनरी को नहीं पता था, लेकिन पोर्शिया जानती थी, इसीलिए वो हंस रही थी उसका कहानी जब वो सुना रहा था। तो अब उसके बाद जब उसने मना कर दिया था, बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो जो हेनरी है उसने पहले ही मना कर दिया था कि मुझे आपसे कोई भी जॉब नहीं चाहिए। ठीक है, ही वॉन्टेड टू रिटर्न टू हिज होम। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो कहता है, जब उसे पता चला कि पोर्शिया के फादर है वो, तब वो कहता है कि नहीं, मुझे जॉब आपसे चाहिए,
और मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, मुझे आपसे एक जॉब चाहिए। और जब वो पूछते हैं कि उसे कौन सी जॉब चाहिए, तो वो कहते हैं सन इन लॉ की जॉब चाहिए। दैट मीन्स इन शॉर्ट ही वाज आस्किंग टू मैरी पोर्शिया। ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब ये पूरा स्टोरी लंदन के लोगों तक पता चला, तो बहुत दिन तक जो लंदनर्स थे, जो लंदन के लोग थे, वो कुछ और के बारे में बात नहीं कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट पोर्शिया के जो फादर थे, उसने जो 1 मिलियन पाउंड का नोट था, वो इंग्लैंड के बैंक में जाके जमा करा दिया और उसे कैश करा दिया। कैश कराने का मतलब होता है कि 1 मिलियन जो है, उन्होंने उसका चेंज कराकर डिपॉजिट करा दिया। और वो जो नोट है, अब वो कैंसिल हो चुका था, मतलब उसका वैल्यू नहीं रहा मार्केट में। अभी कोई अगर उसको अब वो देता किसी को, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता। ठीक है। तो ही कैंसल्ड नोट जो है, वो उसे वेडिंग प्रेजेंट के तरफ से पोर्शिया के फादर ने एज अ वेडिंग प्रेजेंट उन दोनों को गिफ्ट कर दिया, पोर्शिया और हेनरी को गिफ्ट कर दिया। और उन दोनों ने अपने नए घर में उसे फ्रेम करा के लगा लिया। और जब भी उसे कोई पूछता था, तो वो यही कहता था कि ये जो 1 मिलियन पाउंड का बैंक नोट है, इसने मुझे सिर्फ एक ही सबसे ज्यादा अच्छी चीज और वैल्यूएबल चीज मुझे ला के दी, दैट इज पोर्शिया। सो यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है, दैट इज एंड हियर। ठीक है। यहाँ पर ट्रैक 1 जो है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। दिस इज जस्ट द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड स्टोरी। ठीक है। बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से जो है हेनरी एडम बिलोंग करता था, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, अबाउट द एरिया वेयर ही बिलोंग्स, अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है। बैकग्राउंड स्टोरी, लंदन में कहाँ पर वो रहता था एंड ऑल थिंग्स, वो सारी चीजें के बारे में यहाँ पर। हाउ डिड पीपल ड्रेस इन 1850s। ठीक है। ये बैकग्राउंड स्टोरी एक्चुअल में स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, बट बैकग्राउंड थिंग आपको जैसे इमेजिन अगर करना हो, ठीक है, तो इमेजिन करने के लिए आपको किस तरह के वहां पर सूट पहनते थे लोग, किस तरह के ड्रेसेस पहनती थी लेडीज, वो सारी चीजों के लिए दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन है। ठीक है। दिस इज नॉट नेसेसरीली टू रीड फॉर यू, ये सिर्फ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है ये पढ़ना। ट्रैक वाली जो चीजें हैं, ये जरूरी नहीं है पढ़ना। दिस इज ओनली फॉर द बैकग्राउंड स्टोरी। यहाँ पर आपकी पार्ट 8 पे आपकी स्टोरी जो है, एक्चुअल स्टोरी जो है, वो खत्म हो जा रही है। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है पार्ट 1 से पार्ट 8 तक, ये स्टोरी आपकी एक्चुअल स्टोरी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे, यू कैन रीड दैट पार्ट। जो ट्रैक वाला पार्ट है, आप रीड कर सकते हो, अगर उसमें ऐसा कुछ है जो आपको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हो, बट दैट इज नॉट रिलेटेबल टू योर स्टोरी। तो यहाँ पर जो है हमारी स्टोरी तो एंड हो गई है। आई होप देर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट दिस स्टोरी अबाउट। समझ में आ गई होगी सबको कि यहाँ पर क्या हो रहा है स्टोरी में, और किस तरह क्या चीज हेनरी ने किस तरह सर्वाइव किया उस बैंक नोट के साथ, और उसने क्या क्या अपना दिमाग लगाकर, लाइक ही कुड हैव एक्चुअली गिवन द $1 million टू मिस्टर हेस्टिंग, राइट। अगर उसके पास उतना दिमाग नहीं रहता, तो वो $1 million मिस्टर हेस्टिंग को दे देता, फिर बाद में कह सकता था उन लोगों को कि वो नोट उसने दे दिया किसी को जान बचाने के लिए, कि कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे फ्रेंड था उसको मैंने दे दिया, राइट। So, but he had a brain, he had a good brain, he was intelligent person, so he used his brain to get through all those things। ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी परेशानियां थी, उन सब से निकलने के लिए उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, और इन दैट सिचुएशन he became the he got all the things that he wanted। उसके पास एक स्टेबल जॉब नहीं, उसके पास बहुत अच्छा स्टेबल इनकम आ गया था, उसके पास अपना स्टेबल इनकम आ गया था, उसे किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं थी। एंड आफ्टर एवरीथिंग व्हाट हैपेंड विद हिम, ही आल्सो मेट द लव ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी स्टोरी हमारी एंड होती है। आई हैव टेकन द अटेंडेंस। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस स्टोरी? अगर इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्लास स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। एंड इफ लेट मी जस्ट आस्क दिस, 444 या 445 दोनों बैच के स्टूडेंट मुझे एक बार चेक करके बताओ, क्या ये स्टोरी का जो पीडीएफ है मैंने आपके ग्रुप में भेजा है? क्या ये स्टोरी का पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में भेजा है? चेक करके अभी बताइए व्हाट्सएप पे। नहीं भेजा है, ठीक है। आई विल सेंड इट राइट नाउ। अभी मैं तुरंत इसको क्लास के बाद सेंड करूंगी आपको। एंड टिल द टाइम
आप रीड करिए और नेक्स्ट क्लास आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे दे दूंगी। नेक्स्ट क्लास इसको एंड कर देंगे हम लोग। इफ यू आर हैविंग नॉट टू मच डाउट तो नेक्स्ट क्लास ये एंड हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, एनी डाउट्स हियर? No, ma'am. Okay, so let's end this session here. Chapter का I have told you already, PDF में आपको send कर दूंगी group में. You can read it carefully and next class we will discuss the questions. Okay.